অধ্যাপক রাকেশ। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসিআই। বিএসএসিআই বেলুড়ে সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং একদম শুরুতেই আমরা যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর রাকেশ দাস মহাশয় ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। স্যারকে সার্চ টু রিসার্চে স্বাগত জানাই। তো আমি স্যারকে নিয়ে এবং আজকের প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা কিরণ ম্যামের অনুমতি নিয়েই আজকের সত্র শুরু করছি। ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম। প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজকে শুভ রথযাত্রা, উল্টো রথ। এই শুভ রথযাত্রার দিন আজকে আমরা একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি। সবার প্রথমেই বলে রাখি, সার্চ টু রিসার্চ এই প্ল্যাটফর্মটি মূলত একজন ছাত্রকে গবেষক হয়ে ওঠার পথ দেখায়। যে কোনো ছাত্র তার MA পাশ করার পর লক্ষ্য থাকে নেট সেট, কিন্তু নেট সেট পাওয়ার পর তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে ভালো একটা গবেষণা করা এবং অধ্যাপক হওয়া। কিন্তু সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে সব থেকে বড় অন্তরায় সেটা হচ্ছে ছাত্র থেকে গবেষক হয়ে ওঠার মাঝখানে একটা বিস্তর ফারাক থাকে। কি ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করব, টপিক কি হবে, কিভাবে লিখবো, রিসার্চ প্রপোজাল কি করে করব, এই বিষয়টাতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্যই মূলত আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম। এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, এই সার্চ টু রিসার্চ প্ল্যাটফর্মটা মূলত মাথায় আসে আমি আমাদের অধ্যাপক রাকেশ দাস মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গে। আমি নিজেও তখন গবেষণা করছিলাম এবং নামটাও স্যারেরই দেওয়া। তো আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে আজকের পাণিনীয় ব্যাকরণে কি ধরনের গবেষণা হতে পারে কি একটা সত্রে আমরা স্যারকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি এবং তার সঙ্গে আছেন ডক্টর কিরণ আরিয়া ম্যাডাম মহাশয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, ডক্টর হরি সিং গৌর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে। তো সকলের অনুমতি নিয়ে আজকের সত্রের একদম প্রথমে আমি ওয়েলকাম অ্যাড্রেস, স্বাগত ভাষণের জন্য অনুরোধ করব চন্দ্রিমা সাহাকে, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, আসাম। চন্দ্রিমা। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে চন্দ্রিমা। ঠিক আছে। नमस्कार, BSSI सर्च टू रिसर्च के तरफ से मैं चंद्रिमा साहा, शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से आप सभी को सांध्यकालीन शुभेच्छा व प्रणाम निवेदित करती हूँ। गुरुजनों को नमस्कार और हार्दिक श्रद्धांजलि। उपस्थित अन्य श्रोत्री वर्ग को सुस्वागत। आज हम सबके साथ हमारे इस सत्र में उपस्थित है श्रद्धेया अध्यापिका श्रीमती किरण आर्या महाशया, जो आज के इस सत्र में हम सबके मार्ग प्रदर्शिका तथा मुख्य वक्त्री है। वह डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग की सहकारिणी अध्यापिका है। उनके विषय में सबको परिचित कराने में मैं अपने आप को बहुत आनंदित तथा गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। उनके प्रायः 12 रिसर्च पेपर, 5 किताबों में अध्याय निर्मात्री के रूप में 5 स्थलों में और सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में 31 जगह में योगदान है। बहुत सारे शोध छात्र और छात्राएं उनके समीप कार्यरत होकर अपने ज्ञान तृष्णाओं को निरंतरता के साथ वर्धित कर रहे हैं। उपनिषद, पुराण, दर्शन शास्त्र, साहित्य इत्यादि के ऊपर उनके दर्जनों शोध पत्र और आलेख है। मैं मैम को हमारे इस आंतरजालिक
सभा में जुड़ने के लिए कोटि कोटि नमन व सुस्वागत निवेदित करती हूँ। साथ ही आज के इस भव्य संगोष्ठी में उपस्थित है श्रद्धेय आदरणीय अध्यापक डॉक्टर राकेश दास महाशय, व्याकरण के मशहूर विद्वान तथा पंडित। बंगाल के संस्कृत क्षेत्रों में कोने कोने में उनका नाम गुंजित होता है। वह अभी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत व दर्शन विभाग के सहकारी अध्यापक है। अब तक प्राय 6 रिसर्च स्कॉलर को वह मार्ग प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रायः 10 से भी अधिक विभिन्न विषयों में उनके किताबें हैं। 45 से भी अधिक सेमिनार पेपर्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है। कथासरित नामक प्रसिद्ध पत्रिका के सह संपादक भी है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी उनका योगदान है। सर को हमारे इस सत्र में आने के लिए हम भूय भूय प्रणाम व अभिनंदन निवेदित करते हैं। और आज जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं सभी को स्वागत। आप सभी अंत तक रहकर सत्र का लाभ उठाएं। नमस्कार। চন্দ্রিমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আর কথা বলে সময় নষ্ট করব না। আমি সবচেয়ে প্রথমেই আমাদের সকলের প্রিয় সম্মানীয় অধ্যাপক ডক্টর রাকেশ দাস মহাশয়কে আশীর্বচনের মাধ্যমে আমি আমাদের এই সত্রে শুরু করতে অনুরোধ করব। তবে যদিও অধ্যাপক ডক্টর রাকেশ দাস মহাশয়কে সবাই চেনেন, কিন্তু তবুও বর্তমানে ডক্টর রাকেশ দাস মহাশয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রূপে কার্যরত রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বেলুর মঠ, হাওড়াতে। এই মুহূর্তে আমি স্যারকে অনুরোধ করব আশীর্বচনের মাধ্যমে এই সত্রটি শুরু করে দেওয়ার জন্য। স্যার। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। अमित শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, স্পষ্ট। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। आज इस सत्र में आमंत्रित होकर के मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आज से कई साल पहले मैंने एक बार बातचीत करते हुए कुछ हमारे छात्र बैठे थे हमारे पास, जिसमें अमित भी था। मैंने बताया था कि इस प्रकार का एक होना चाहिए कि एमए के बाद में किस विषय पर रिसर्च किया जाए, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन लोगों को मिले। क्योंकि सामान्य रूप से यूजीसी ने कभी एक गाइडलाइन में बताया था कि एमए के अंदर एक पेपर रहना चाहिए जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ हद तक पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो हमारे किसी भी लगभग विश्वविद्यालय में, कुछ गिने चुने 1-2 विश्वविद्यालय में होंगे, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में करिकुलम के अंदर इस विषय को रखा नहीं जाता है। एमए के बाद में जब जो छात्र रहते हैं वो अचानक तुरंत बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने शोधार्थी बन जाते हैं, शोधकर्ता बन जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब करना क्या है। और पूरे देश में केवल संस्कृत की स्थिति नहीं है, सभी लगभग विषयों में, विशेषतः ये जो अपने ह्यूमैनिटीज का जो विषय रहा है, ह्यूमैनिटीज में जो भी शोध होते हैं उसमें 95% से ज़्यादा जो शोध होते हैं उसका कोई मतलब उसका कोई मूल्य नहीं होता है।
वो बस एक डिग्री मात्र पाने का जरिया बन करके, और जो किताबें 4-5 किताबें छपती है, लाइब्रेरी में पड़ी रहती हैं 2-4 साल तक, उसके बाद में उसको भी उठा के स्क्रैप में डाल दिया जाता है। छात्र कई बार स्वयं भी अपने जो पीएचडी है या एमफिल की थीसिस है उसको लोगों के सामने बताने के लिए या दिखाने के लिए लज्जा का अनुभव करता है, इसमें क्या दिखाना है। इसलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन, ये बहुत समयोचित प्रयोजन को सिद्ध करने वाला ऐसा कार्यक्रम, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पूरे देश में अलग अलग विद्वानों के मार्गदर्शन, इसमें छात्रों का जिस प्रकार का उपकार होता है, वैसे ही उपकार जो विद्वान यहाँ पर आते हैं सुनने के लिए या बोलने के लिए, उनके माध्यम से उनके साथ काम करने वाले शोधार्थी, जो शोधार्थी, जैसे आज मैं इस विषय को सुनूंगा तो मेरे साथ जो शोधार्थी काम कर रहे होंगे, मेरे जरिए उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इसलिए मुझे प्रसन्नता तो है ही, और मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ, क्योंकि BSSEI या ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की धुरा को संभालने वाले जो विद्वान हैं, उनको कभी मैंने पढ़ाया है, इस विषय का मुझे गौरव है। सर्वत्र जयमिन्विच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। जो इस प्रकार का कार्यक्रम मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे विद्यार्थी जिनको मैंने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, 1 क्लास 2 क्लास, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। आज के विषय को प्रस्तुत करने वाली विदुषी है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, और सुनने वाले सभी को अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से मैं मेरी ओर से कृतज्ञता रहेगी अमित और अनंत मुखर्जी, जो दोनों मिलकर के ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अमित अनम्यूट करो। মাইকটা খোলো, মাইকটা। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। স্যারের হাত ধরেই মূলত সংস্কৃত শেখা 2010 সালে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং যতটুকু যা শিখেছি ব্যাকরণ বা সংস্কৃত বা জেনেছি, রিসার্চ ওয়ার্ক, সমস্ত দিক থেকে স্যার সমস্ত কিছুতে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আশা করি স্যারের সেই হাত আজীবন আমার মাথার উপর থাকবে আশীর্বাদ রূপে। তো আজকে এই প্ল্যাটফর্মে স্যারকে পেয়ে সত্যি আমি খুব খুব আনন্দিত। আজকে BSSEI এর বই বিপণী, সেই নামটাও স্যারের দেওয়া, সার্চ টু রিসার্চ সেটাও স্যারেরই সমস্ত পরিকল্পনা। তো সত্যি আজকে যে আনন্দটা আমি পেয়েছি, আমি মানে ব্যক্ত করতে পারছি না, এতটা আনন্দ পেয়েছি। যাই হোক, স্যারকে আরো অনেক প্রণাম, শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাই। এভাবে পাশে থাকবেন স্যার, এটুখানি আমি অনুরোধ রাখবো। বেশ, আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে সকলের সামনে এসেছি, সেটা আর কিছুই নয়, পাণিনীয় ব্যাকরণে কি ধরনের গবেষণা আগামী দিনে হতে পারে। মূলত গবেষকরা, আমরা যারা সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনো করি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, এগুলো নিয়ে পড়ছি, কিন্তু যখনই এর পর
একটা গবেষণা করার চাহিদা তৈরি হয়, ইচ্ছা তৈরি হয়। এবং যারা ব্যাকরণের ছাত্রছাত্রী, স্বাভাবিকভাবেই আমরা ব্যাকরণ নিয়েই আমাদের গবেষণাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবো। তখনই মনে প্রশ্ন চিহ্ন আসে কি নিয়ে গবেষণা করব। এবং সে কারণেই আজকে আমরা বিষয় রেখেছি পাণিনীয় ব্যাকরণে কি ধরনের গবেষণা হতে পারে সেটা নিয়ে। এবং আজকের এই আলোচনাতে আমাদের প্রধান বক্তা ডক্টর কিরণ আরিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, ডক্টর হরি সিং গৌর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর, মধ্যপ্রদেশ। তো আমি আর দেরি করব না, আমি সরাসরি ডক্টর কিরণ আরিয়া मैडम के अनुरोध करब आजकल सत्र शुरू करार जन्य। अभी मैं किरण आर्या महाशया को अनुरोध करता हूँ आज उसका आशीर्वचन या उसका वचन शुरू करने के लिए। महोदय। मैम सुनाई नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, एक बार थोड़ा सा माइक्रोफोन चेक कर लीजिएगा। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, अश्राव्यो ध्वनि ही। एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करने से शायद ठीक रहेगा। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। इदानीम् आयाति? हाँ, संप्रति आयाति, संप्रति आयाति। सम्प्रति आमाम्। आयाति। अस्तु, अस्तु। दृष्ट्वा रूपे व्याकरो सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धा मन्त्रिते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापति। इस अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु, प्रतिभा संपन्न, प्रबुद्ध शोधार्थीगण तथा आदरणीय डॉक्टर राकेश दास सर, जो अभी इस विषय की, इस संगोष्ठी की प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तथा इस कार्यक्रम के जो भी संचालक हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अनंत मुखर्जी को जान रही हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ, तथा अमित देव जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके जो भी सहयोगी रहे हैं इस कार्यक्रम में, उनके साथ उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अभी राकेश दास सर ने बहुत अच्छी बात कही कि रिसर्च मैथोलॉजी को एमए के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको सूचना दूं कि हमारे यहाँ ये चल रहा है। हम लोगों ने संस्कृत विभाग में और इस विश्वविद्यालय के अन्य जो भी विभाग एमए के 4th सेमेस्टर में ये रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है, और बच्चे इस पर चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज का जो विषय है पाणिनीय व्याकरण में शोध की विविध संभावनाएं, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी, शोधार्थी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि शोध का विषय कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे शोध का विषय कैसा हो, क्या हो। दूसरी बात, शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम जो शोध कर रहे हैं उससे क्या परिणाम निकलेगा, क्या प्रतिफल उसका समाज को मिलेगा, इस बात पर हमें चिंतन करना। उसकी वर्तमान काल में क्या उपयोगिता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है।
तीसरी बात कि आप जो भी शोधार्थी शोध करता है वो उस शोध से कितना संतुष्ट है, क्योंकि आजकल शोध हो रहे हैं, जो शोधार्थी हैं वो थोड़ा इधर से लिया थोड़ा उधर से लिया करके भी अपने शोध को पूर्ण कर ले रहे हैं, तो उस शोध से उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आत्मसंतोष तब होता है जब हम उस शोध को शोध की तरह प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शोध कर लेना और शोध करना इसमें अंतर है। शोध करने वाला शोध पर ध्यान देते हुए शोध को करता है, लेकिन कर लेने वाला व्यक्ति जैसे तैसे कर लेता है। तो सबसे पहली बात कि हमें उस शोध से संतोष होना चाहिए और शोध में मौलिकता होनी चाहिए। चौथी बात, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, आपका मौलिक चिंतन होना चाहिए। जो भी हम शोध में अध्याय रख रहे हैं, जितने भी अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में मेरा मंतव्य है कि अंत में अपना एक प्रामाणिक मंतव्य अवश्य होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और शोध में कोई भी उद्धृत कथ्य बिना प्रमाण के न हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शोध में गुणवत्ता होनी चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने में सहायक है, उन पर विचार होना चाहिए। तो ये जो शोध शब्द है, सबसे पहले मैं यहीं से बात करूंगी, क्योंकि मैं व्याकरण की हूँ और व्याकरण पर ही हम आज चर्चा करने बैठे हैं कि ये जो शोध शब्द है ये शुद्ध धातु से निर्मित है, योग रूढ़ी है, प्रकृति प्रत्यय से निर्मित है, लेकिन ये रूढ़ी है रिसर्च करने के लिए, गवेषणा करने के लिए, अन्वेषण करने के अर्थ में ये रूढ़ हो गया है। योग रूढ़ी शब्द है, क्योंकि शोध का अर्थ तो सामान्य रूप से होता है शोधन करना, स्वच्छ करना, लेकिन यहाँ पर शोध का अर्थ शोधन करना मतलब शास्त्रों का परिष्कृत रूप सामने लाना, ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा अपने मौलिक विचारों से निर्धारित विषय को संस्कारित करना, ये शोध है। तो शुद्ध धातु से पाणिनि व्याकरण के अनुसार शुद्ध धातु से कर्तरी चकार के संज्ञायाम, ये सूत्र है, इससे घय प्रत्यय करके शोधा शब्द बनता है, कर्ता भिन्न कारक है। मुझे एक बात स्मरण आती है, आप सबने भी आपके कोर्स में लगा होगा वेदांत सार दर्शन का ये जो ग्रंथ है, तो वेदांत सार में बहुत अच्छी चर्चा करते हैं ईश्वर वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय की। तो वहां पर चर्चा आती है कि अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन, ये चार चीजें जो है ग्रंथ के आरंभ करते समय स्वभाव होनी चाहिए कि इसको कौन पढ़ सकता है। जैसे ग्रंथ के लिए कि इसका अधिकारी कौन है, इसमें विषय क्या है, और इसमें लिखे हुए विषय और पुस्तक का क्या संबंध है, और उस जो हम लिख रहे हैं, जो लेखक लिख रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो चतुष्टय है, मेरा मानना है कि हर ग्रंथकार को ध्यान में रखना चाहिए और हर एक शोधार्थी को भी ध्यान में रखना चाहिए। वेदांत सार की जो दृष्टि है, इस पर हम शोध के साथ इसको विचार करें, तो क्योंकि शोध का अधिकारी भी हर कोई नहीं होता, शोध का अधिकारी वही होता है जो शोध को कर सके, भली प्रकार उसमें मौलिकता दे सके। शोध तो सभी करते हैं, लेकिन उस शोध का कोई मतलब नहीं होता। और शोध का अधिकारी कौन होता है, तो बहुत अच्छी बात वो आगे करते हैं वेदांत सार में कि ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजन। कि जब तक किसी को यह ज्ञात नहीं होगा कि यह पुस्तक किस विषय की है, मैं इसको समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ, इसके पढ़ने से मुझे क्या लाभ है, तब तक वह उसको पढ़ने में प्रवृत्त नहीं होता है। जैसे ठीक वैसे ही एक शोधार्थी को भी शोध करने से पहले, मैं ये जो शोध करने जा रहा हूँ, इससे समाज को क्या मिलेगा, इसकी वर्तमान काल में क्या उपयोगिता होगी, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका प्रयोजन क्या होगा, जिस विषय में मैं शोध करने जा रहा हूँ तो मेरा उसके साथ तादात्म्य संबंध किस प्रकार से बैठ रहा है, मैं इस शोध में का अधिकारी हूँ कि नहीं। क्योंकि संस्कृत में शोध कर रहे हैं, भाषा पर अधिकार नहीं है, अन्य विषयों में शोध कर रहे हैं, उसकी मूलतः जानकारी नहीं है,
तो इस पर थोड़ा ध्यान इस दृष्टि से देना चाहिए कि अनुबंध चतुष्टय के आधार पर हम शोध को आरंभ करें। और जब ये दृष्टि हमारी रहती है तो शोध शब्द से ही आपका शोध आरंभ हो जाता है। शोध शब्द से ही आपका शोध आरंभ हो जाता है। जब आपने घय प्रत्यय किया तो शोध्यते यह सह शोधः, जिस पर शोध किया जाए, जिसको शोधित किया जाए, जिस ग्रंथ पर हम अधिकार कर रहे हैं, जिस ग्रंथ के विषय का चिंतन कर रहे हैं, तो वो शोधा मतलब विषय आपका आ जाएगा। शोध्यते यह सह विषयः या यस्मिन् शोध्यते सह शोधः, यस्मात् शोध्यते सह ग्रंथः शोधः। ये शोध का जो है वैषयिक अर्थ हुआ। और यस्मै शोध्यते यदि आप कर देंगे, जिसके लिए शोध किया जा रहा है, तो वो यस्मै आपका उद्देश्य हो गया, प्रयोजन हो गया कि किस प्रयोजन के लिए हम शोध कर रहे हैं। और शोध शब्द से जब आप मतवर्थ में अच करते हैं, अर्षादिभ्योच सूत्र है महर्षि पाणिनि का 5वें अध्याय के दूसरे पाद का, तो वहां पर अच प्रत्यय होता है मतवर्थ में। शोधा अस्य अस्तीति शोधा, शोध जिसका है अर्थात शोधार्थी का वो शोध है, तो शोधा अस्य से उसका संबंध वहां आ जाता है। और मतवर्थ इस तरह से करने पर शोधा मतलब अधिकारी। तो इस तरह से शोध शब्द जो है अधिकारी संबंध अनुबंध जो चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय है, विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी, ये उस शोध शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ से हमको शोध शब्द से ही शोध दृष्टि आरंभ करनी है। आगे अब विषय पर जब हम आए कि पाणिनीय व्याकरण में शोध की विविध क्योंकि हम लोग व्याकरण के हैं, और व्याकरण जो है एक एक शब्द पर ध्यान देता है। व्याकरण पर बहुत सारे शोध हुए हैं, ऐसा नहीं है। महाभाष्य को लेकर के शोध हुए हैं, सिद्धांत कौमुदी, परिभाषेन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, वाक्यपदीय, व्युत्पत्तिवाद, इन सब ग्रंथों को लेकर बहुत शोध हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसको केंद्र में लेकर चर्चा करेंगे। तो व्याकरण शब्द सबसे पहले आपके सामने आता है। और ये जो व्याकरण शब्द है आप जानते होंगे कि इसमें वी आ उपसर्ग है और क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके हम व्याकरण शब्द की सिद्धि करते हैं। तो व्याकरण में शोध की संभावनाएं बहुत सारी विविध अनेक जो भी कहिए हो जाती हैं, क्योंकि यह शब्द निर्माण की फैक्ट्री है। और शब्द निर्माण का जो आलय है, वहां से जब हम शब्दों को निःसृत होते हुए देखते हैं और एक शब्द अपने व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक अर्थों को लाने लगता है, तब वह शब्द जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है बहुत व्यापक हो जाता है। पद के आधार पर, समास के आधार पर एक शब्द पर आप शोध कर सकते हैं, एक शब्द पर शोधालेख लिख सकते हैं। अभी उत्तराखंड में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा एक संस्कृत सम्मेलन हुआ। वहां पर भगवान दास महाविद्यालय है, उसके प्राचार्य रहे हैं वर्तमान में प्रोफेसर निरंजन मिश्री जी। उन्होंने बताया कि मैंने पतित पावनी शब्द पर शोध लिखा, शोधालेख लिखा, पतित पावनी। केवल समास के आधार पर उन्होंने 15 पेज का शोध लिख दिया कि पतितानाम पावनी है, वो जो पतित पावनी गंगा है वो पतितानाम पावनी है। और पतितई ही पावनी वर्तमान में समय में है। भाई जो पतित हैं, भ्रष्ट हैं, उन लोगों के द्वारा उनको पावनी करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो पतिता पावनी है, हिमालय से गिरी और सब धरती में सभी को पवित्र करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी पतित पावनी शब्द के समास के आधार पर बहुत अच्छी उन्होंने व्याख्या की। तो कहने का मतलब ये है कि व्याकरण, यदि किसी को व्याकरण पर अधिकार है, हस्ता मलकवत व्याकरण उसके पास है, तो वो एक शब्द के आधार पर भी बहुत कुछ कह सकता है। आप व्याकरण शब्द पे ही आइए। व्याकरण शब्द ही अपने आप में अपनी व्यापकता को दर्शाता है। इसमें क्योंकि ये व्याकरण शब्द जो व्याकरण की संरचना है, व्याकरण का मूल उद्गम है, हम लोग वेद से मानते हैं। जिस ऋचा का मैंने अभी पाठ किया, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत, तो वहां पर व्याकरोत शब्द आया और फिर उस व्याकरोत के आधार पर आगे जो है उसके व्याख्यान हुए ब्राह्मण ग्रंथों पे। गोपद ब्राह्मण में
बहुत अच्छा उसका व्याख्यान करते हैं कि अथ ओंकारम पृच्छामः कः धातुः किम प्रातिपदिकम कः प्रत्ययः कः लिंगः, इस तरह से वो पूरा एक गद्य ही कह जाते हैं। तो वहां पर मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि व्याकरण शब्द की जो आधार है वो वेद से शुरू हो जाता है, और वेद से ही व्याकरण शब्द भी आया। व्याकरोत वहां क्रियावाचक आया है, लेकिन वहीं से फिर गोपद ब्राह्मण उसको व्याकरण शब्द में परिवर्तित करते हुए बताते हैं कि व्याकरण शब्द का आदि वेद। तो वहां पर वी आ उपसर्ग है, तो मेरा ऐसा चिंतन रहा कि वी आ उपसर्ग जरूर है, लेकिन ये जो व्याकरण शब्द है इसमें क्री धातु को रखना और वी आ उपसर्ग को रखना, ये सभी उपसर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये करण जो है सभी धातुओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक व्याकरण शब्द निर्मित होता है, जो अपनी व्यापकता को दर्शाता है। आप बहुत सारे उपसर्गों को इसके साथ लगा लीजिए तो आपको समझ में आएगा। आपने क्री धातु के साथ अधिक लगा दिया, अधिकरोति, तो मतलब शब्दों पर अधिकार होता है। व्याकरण से हमें हमारा शब्दों पर अधिकार होता है। यदि आप अप उपसर्ग लगाते हैं अपकरोति, तो बहुत सारे जो ऐसे धातु में जो इत है और जो विकरण है उनको हम अपकरोति हटाते हैं, तब जाके एक निर्मित शुद्ध शब्द बनता है। डुप चश पाके से आपने डू हटाया, श हटाया, पच के चा का आ हटाया तो पच बचा, शप में पा हटाया श हटाया तो आ बचा। इस प्रकार अपकरण के द्वारा एक पचती शब्द हमारे सामने निर्मित होता है। आ उपसर्ग लगाते हैं आप, आकरोति, विकरोति, पेशांतर करता है, रूपांतर करता है। तो व्याकरण जो है शब्दों को इस तरह से भी परिवर्तित कर देता है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि इसमें धातु क्या है। अधभक्षण धातु से सग्धि शब्द बन रहा है, तो सग्धि शब्द को देखकर बड़ा यदि किसी ने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो अध धातु की कल्पना उसके लिए थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है। अधुना शब्द है, इदम प्रातिपदिक से धुना प्रत्यय करते हैं, इदम गायब हो जाता है ना। केवल अधुना, आ से आप नहीं समझ सकते कि इदम प्रातिपदिक है। अस धातु है, अस का भविता रूप बन रहा है, अस को भू आदेश हो जा रहा है, परिवर्तित हो जाता है। आप उत उपसर्ग लगाते हैं, उत तो उत्कृष्टता प्रदान करता है। ये जो व्याकरण है ये शब्दों को उत्कृष्टता प्रदान करता है। भाषा विज्ञान में आप देखते हैं अर्थ संकोच है, अर्थोत्कर्ष है। तो जैसे कुशल शब्द है, पंकज शब्द है, ये जो शब्द हैं ये उत्कृष्टता प्रदान कर रहे हैं, उन शब्दों का विस्तार कर दे रहे हैं। पंकज शब्द का आप अर्थ जानते हैं, पंके जाता है, किंतु वो पंकज जो सुंदर कमल के लिए रूप हो गया, ये व्याकरण की देन। उपकरोति आप उपसर्ग लगाते हैं तो उपकृत करता है। भाई व्याकरण जिसके पास है, व्याकरण शास्त्र जिसके पास है, तो वो शास्त्रों को अपनी सर्जना शक्ति से उपकृत करता है, अध्येता को भी व्याकरण जो है उपकृत करता है। उपस्करोति भाषा को संवारता है, व्याकरण जो है भाषा को संवारता है। तिरस्करोति यदि व्याकरण का अनध्याय है, अनधीत है जो व्यक्ति, वो तिरस्कृत भी होता है। महाभाष्यकार पतंजलि बहुत अच्छा कहते हैं कि यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्ना विव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। जो हमने पढ़ा लेकिन उसको नहीं जाना तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। परिष्करोति, संस्करोति, मतलब जो भी उपसर्ग आप क्री धातु के साथ रखेंगे और वो जिस अर्थ को कहेगा वो सारे अर्थ व्याकरण में समाहित हो सकते हैं। और वी आ उपसर्ग रखने का मतलब विशेष रूप से विशेषेण आ समन्तात करणम व्याकरण, विशेष रूप से आ समन्तात सभी उपसर्गों को समाहित कर लेता है ये क्री धातु अपने अंदर, और वो व्याकरण शब्द इस तरह से अपनी व्यापकता को प्रदर्शित करता है। तो जब केवल व्याकरण शब्द पर आप ध्यान देते हैं तो आपने देखा कि उपसर्ग किस तरह से आते हैं, धातु के साथ लगते हैं और उनके अर्थों का परिवर्तन कर देने पर उस शब्द को कितना वो व्यापक बना देते हैं। तो ये भी हमारे एक शोध का आधार हो सकता है कि उपसर्गों के साथ किस धातु का क्या अर्थ है, उस अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ, किस आधार पे हुआ और उसका क्या अर्थ हो सकता है लोक प्रयोग के आधार पर। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो भी उन्होंने लोक को आधार बनाया, तो लोक प्रयोग के आधार पर हमें शोध करना है कि उसका, क्योंकि जो आप शोध करेंगे या जो भी शोधार्थी शोध करता है उसको समाज में उतरना है, उसका उद्देश्य समाज को देखना है, वर्तमान काल की उपयोगिता को देखना है। तो उस आधार पर ही
हमको शोध करना है। तो शब्द पर हम चर्चा कर रहे थे, व्याकरण शब्द। शब्द जो है इस संसार का आधार है, हम जानते हैं। इदम अंधम तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। कि शब्द का जो प्रकाश है वो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तीनों लोग यदि ये प्रकाशित नहीं करता तो तीनों लोग अंधकार में डूब जाते, ऐसा पद्यकार कह रहे हैं। क्योंकि शब्द जगत से ही ये सारा संसार जो है संसरण कर रहा है। यदि शब्द नहीं होता तो इसका विकास, संसार का विकास नहीं होता। सहारा लेती है हमारे मस्तिष्क में, वो सांकेतिक भाषा शब्द का सहारा लेती है, तभी वो संकेत भली प्रकार समझ में आता है। इसीलिए आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में शब्द को ब्रह्म कह दिया। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। कि वैयाकरणों के लिए तो शब्द ही ब्रह्म है, समस्त संसार के लिए ही शब्द ब्रह्म होना चाहिए। क्योंकि यदि शब्द नहीं होता तो ये संसार की जो प्रक्रिया है, अर्थ भावेन विवर्तते प्रक्रिया जगतो यतः, संसार की जो प्रक्रिया है वो शायद ही अग्रसर होती। इसीलिए उन्होंने शब्द को ब्रह्म की उपमा दी। तो पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है वो भारतीय शब्द विद्या का सबसे प्राचीन ग्रंथ। महर्षि पाणिनि ने इसीलिए शब्द ब्रह्म को आधार बनाकर उन्होंने व्याकरण को जो है उपक्रम नहीं कहेंगे, उपज्ञा, पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरण। क्योंकि पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो पाणिनि का अपना नवीन नहीं है, पर उपज्ञा है, वो उपक्रम नहीं है। उपक्रम कहते हैं किसी नई चीज के आरंभ करने को, और उपज्ञा मतलब जो चला आ रहा है उसको एक नया रूप देना। तो पाणिनि का ये जो व्याकरण है, क्योंकि पाणिनि से पहले 8 व्याकरण हो चुके हैं, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशदम शाकल्यम पाणिनीयकम। 8 व्याकरण पाणिनि से पहले हो चुके हैं। तो पाणिनि ने उन सब का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना ये जो व्याकरण शास्त्र है इसका उन्होंने उपज्ञा की। हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो संस्कृत भाषा, परिष्ठित संस्कृत भाषा आज हमारे सामने है, वो महर्षि पाणिनि की ही देन। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को अमरता प्रदान, व्याकरण की जो नीति उन्होंने अपनाई उसके द्वारा भाषा के सब अंग प्रकाशित हो गए। संस्कृत भाषा का जहां तक आप विस्तार देखेंगे, पाणिनि शास्त्र वहां तक प्रमाण माना जाता है। पाणिनि का प्रभाव सदा के लिए संस्कृत भाषा पर अक्षुण्ण है। यह कहा जा सकता है कि पाणिनि के कारण ही ये जो संस्कृत भाषा है ये कालग्रस्त नहीं हो पाई। इसीलिए महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है इसके पाश्चात्य जगत भी इसका लोहा मानता है। वेबर, पाश्चात्य साहित्यकार जो वेबर है, उन्होंने अपने संस्कृत भाषा के इतिहास में अष्टाध्यायी को इस कारण सभी देशों के व्याकरण में श्रेष्ठ माना कि इसमें बहुत बारीकी से धातुओं और शब्द रूपों की छानबीन की गई। इसी प्रकार गोल्ड स्टूकर जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनके मत में भी पाणिनि शास्त्र भाषा का स्वाभाविक विकास हमारे सामने उपस्थित करता है, ऐसा वो अपने भाषा शास्त्र के इतिहास में कहते हैं। और हम भारत की चर्चा करें तो भारतवर्ष में व्याकरण को उत्तरा विद्या कहते हैं। 6 वेदांग आप जानते हैं, वेद और उनके 6 अंग, तो उसमें ये जो व्याकरण है, व्याकरण नाम इयम उत्तरा विद्या, ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं। और प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरण, ये जो व्याकरण है ये वेद के जो 6 अंग है उनमें सबसे प्रधान माना जाता है। भाषा के वर्गीकरण और प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण में जैसी उन्नति भारत में हुई है वैसी अन्यत्र आपको देखने में नहीं मिलेगी। संस्कृत के वैयाकरणों ने सर्वप्रथम मूल शब्द के रूपों को अलग किया, धातु और भेद को पहचाना, प्रत्ययों के अर्थों का निश्चय किया, और फिर इसके बाद शब्द विद्या का इतना निश्चित और पूर्ण शास्त्र तैयार किया जिसकी उपमा किसी अन्य देश में नहीं मिली। भारतीयों के शब्द विद्या विषयक ज्ञान से इसीलिए जो पश्चिमी विद्वान हैं वे भी अपने भाषा शास्त्र में इसका लाभ उठाते हैं और इसका लोहा मानते हैं।
तो जो महर्षि पाणिनि है उनका अष्टाध्यायी यह प्रमुख ग्रंथ है। पाणिनीय व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण के नियमों का परिचय देना, किंतु इन सूत्रों में, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों में पाणिनि कालीन भाषा के इस तरह के शब्द भी सहज आ गए हैं जिनसे उस युग का, पाणिनीय युग का सांस्कृतिक जीवन हमारे सामने आता है। महर्षि पाणिनि ने अपने समय की सूक्ष्म छानबीन की। उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और महता श्रमेण, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य के पस्पशानिक में लिखते हैं, प्रमाणभूत आचार्य दर्भ पवित्र पाणि प्रांग मुखे उपविश्य महता श्रमेण सूत्राणि प्रणयति स्म। कि पूर्व दिशा की ओर बैठकर महान श्रम से, तप से उन्होंने सूत्रों को लिखा। ऐसे ही नहीं लिख दिया, उन्होंने कतिपय देशों का भ्रमण किया। वो लिखते हैं कंबोज देश में ये भाषित होता है, सौराष्ट्र में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कई कई देशों का उन्होंने अपने उसमें वर्णन किया है। इससे समझ में आता है कि उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया, सूक्ष्म छानबीन की। इसके लिए उन्हें मनुष्य जीवन के प्रायः संपूर्ण व्यवहारों की जांच पड़ताल करनी पड़ी। किस देश में किस भाषा का आधिक्य है, वहां का रहन सहन क्या है, वहां की संस्कृति क्या है, वहां का खान पान क्या है, वहां की वेशभूषा क्या है, इन सारे विषयों की उन्होंने छानबीन की, पड़ताल की। उसके बाद उन्होंने अपने शास्त्र का संरचन किया। इसीलिए पाणिनि का शास्त्र तत्कालीन भारतीय जीवन एवं संस्कृति का कोश बन गया। आप, क्योंकि हम शोध की दृष्टि से जब इसको देखते हैं तो हम देखेंगे उसमें भूगोल संबंधित बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, दार्शनिक विमर्श, आर्थिक जीवन, शिक्षा, विद्या, है ना, धर्म, दर्शन, राजनीतिक जीवन, इन सब विषयों में राई राई करके पाणिनि ने सामग्री का स्वरूप इकट्ठा कर दिया है। जब हम पाणिनीय शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संस्कृति, तत्कालीन जो भारतीय संस्कृति की झलक है, पूरी जानकारी है, वो हमें पाणिनीय ग्रंथ में उपलब्ध हो जाती है। इसलिए पाणिनीय ग्रंथ को जब आप इस दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि पाणिनीय जो व्याकरण है इसके आप दो स्वरूप मान सकते हैं, एक अंतरंग स्वरूप और एक बहिरंग स्वरूप। इसका जो पाणिनी व्याकरण का जो बहिरंग स्वरूप है वो है शब्द निर्माण प्रक्रिया। क्योंकि इसको ज्यादातर लोग इसीलिए इतना ही समझते हैं कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो केवल शब्द निर्माण का आगार है, शब्द निर्माण का कोश है, शब्द निर्माण का एक सांचा है जिसमें ढलते हुए शब्द निर्मित होते हैं। लेकिन इसका जो अंतरंग स्वरूप है, वो अंतरंग स्वरूप इसका सूक्ष्म अध्ययन करने पर आपको समझ में आएगा। सूक्ष्म अध्ययन करने पर इसमें अंतर्निहित संस्कृति आपको समझ में आएगी। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और इतिहास, भारत का इतिहास हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है जब हम इसका अंतरंग रूप से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। और इस तरह से जब आप शोधपरक दृष्टि रखते हैं तो एक इसके अध्ययन की एक बृहत योजना हमारे सामने आती है और उस योजना के तहत बहुत सारे अनेक शोध संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो पाणिनि के सूत्रों का विस्तृत अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे सामने काशिका है, न्यास है, पदमंजरी है, प्राचीन व्याकरण के अनुसार महर्षि पतंजलि है, नव्य व्याकरण के अनुसार सिद्धांत कौमुदी है, कैयट है, नागेश है, इन सब के जो ग्रंथ है, व्युत्पत्तिवाद है, वाक्यपदी है। जब इन सब ग्रंथ हमारे समक्ष आते हैं तो इन सब ग्रंथों में जो सामग्री उपलब्ध है उसका आपस में प्राचीन और नव्य में एक तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि हमारे सामने आती है कि इसमें कितना अंतर है या इनके उदाहरणों का क्या वैशिष्ट्य है, महर्षि पाणिनि क्या कहना चाहते हैं और उसको प्राचीन व्याकरण के उस कथ्य को जो नव्य व्याकरण है वो किस दृष्टि से ले रहा है, वो क्या कहना चाहता है। या महर्षि पाणिनि ने अपने समय में तो तात्कालिक स्थितियों का, सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका वर्णन किया, तो उसके जो व्याख्याता, जो प्राचीन व्याकरण या नव्य व्याकरण जो ग्रंथकार हैं जो लिख रहे हैं उसका व्याख्यान कर रहे हैं महर्षि पाणिनि ग्रामर का, उनकी दृष्टि क्या है, वो किस तरह से अपने ग्रंथ में उदाहरणों को ले रहे हैं,
उनकी तात्कालिक स्थिति क्या है, उनका तात्कालिक चिंतन क्या है, उनके समाज का उस समय का क्या परिवेश है, उसमें और प्राचीन में क्या अंतर है, ये तुलनात्मक दृष्टि हमारे समक्ष आती है। और दूसरा अष्टाध्यायी का अंतरंग अनुशीलन जब हम करते हैं तो पाणिनि का जो प्रकरण विभाग है उस पर भी हमें शोध हम कर सकते हैं, करना चाहिए कि महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकरण अपने उसमें रखे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रथम अध्याय है उसमें संज्ञा प्रकरण है। उसके बाद आप दूसरे अध्याय में आइए, समास प्रकरण है। फिर उस दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में विभक्ति प्रकरण है। फिर चौथे पाद में समास में कौन सा लिंग वचन है निर्धारित होता है, वो प्रकरण है। फिर तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में प्रत्यय का अधिकार है, बहुत लंबा प्रत्यय का अधिकार है, जिसमें कि तीसरे अध्याय में तो महर्षि पाणिनि कृत प्रत्यय को बताते हैं और चौथे अध्याय में वो स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय प्रकरण रखते हैं। फिर षष्ठ अध्याय में जब हम आते हैं तो द्वित्व प्रकरण है, किस प्रकार धातुओं को द्वित्व हो जाता है और द्वित्व होने के बाद एक नए स्वरूप में वो सामने आ जाता है, पच का पपाच बन जाएगा, हु का जुहाब बन जाएगा, इस वो प्रकरण षष्ठ अध्याय में है। और संधि प्रकरण है प्रथम पाद में। फिर षष्ठ अध्याय के दूसरे पाद में स्वर प्रकरण है। तीसरे पाद में आइए तो उत्तर पदाधिकार प्रकरण है, उत्तर पद के पर रहते पूर्व पद को क्या कार्य होना है, यहाँ पे 2 पद हैं, समस्त पद हैं। चौथे पाद में फिर अंगाधिकार प्रकरण है, जिसमें शब्द रूपों की भी सिद्धि है, धातु रूपों की भी सिद्धि है। आप सप्तम अध्याय में भी अंगाधिकार है, शब्द रूप धातु रूप सिद्धि है। अष्टम अध्याय में आप आते हैं तो सर्वस्य द्वि कहकर के द्वित्व प्रकरण है, जहाँ पे बने बनाए पदों को द्वित्व हो जाता है। स्वर प्रकरण है, शब्द निर्माण प्रक्रिया भी है, स्वर प्लुत प्रकरण है। फिर आगे तीसरे पाद में मूर्धन्यादेश प्रकरण है, रुत्व प्रकरण है। चौथे पाद में णत्व प्रकरण है। इस प्रकार मतलब बहुत सारे प्रकरण उसमें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो प्रकरण महर्षि पाणिनि ने रखे हैं उनमें सुबंत और तिङंत प्रकरण बहुत बिखरे बिखरे से हैं। कहीं पर सुबंत प्रकरण आपको सप्तम अध्याय में दिखेगा, अष्टम में दिखेगा, कुछ षष्ठ में है। तो महर्षि पाणिनि ने कौन सा किस चिंतन के आधार पर इस तरह से उन्होंने, ये तो सच है कि अनुवृत्ति और अधिकार को लेकर के वो चलते हैं और सूत्र उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शैली में लिखा है कि एक सूत्र से बहुत सारी बातों को वो कह सके और जितना छोटा सूत्र बना सकते थे उतना उन्होंने प्रयास किया। वैयाकरण कहते भी हैं अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, कि आधी मात्रा भी यदि छोटी हो जाती है तो वैयाकरण पुत्रोत्सव जैसा आनंद मनाते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने प्रयास किया है और अनुवृत्ति अधिकार के आधार पर उन्होंने उन सूत्रों को, उन प्रकरणों को बांधा है कि बार बार वो अधिकार या अनुवृत्ति ना कहनी पड़े। लेकिन उससे कहीं कहीं प्रकरण विच्छेद हुआ है। आप व्याकरण की विदुषी आचार्य पुष्पा दीक्षित माता जी को जानते होंगे, जो बिलासपुर में पाणिनि शोध संस्थान की संस्थापिका है, उसका निर्देशन कर रही हैं। तो उन्होंने इस पर चिंतन किया और उन्होंने सुबंत प्रकरण को एकत्र करने का, तिङंत प्रकरण के सूत्रों को एकत्र करने का बहुत अद्भुत प्रयास किया है। तो उस पर अच्छा चिंतन किया है और शोधार्थी जो व्याकरण पर शोध करना चाहते हैं वो उनसे दिशा निर्देश ले सकते हैं। तो उन्होंने स्वर प्रकरण को एक साथ करने का प्रयास किया है। सुबंत प्रकरण को, जो कि सुबंत कुछ सूत्र षष्ठ अध्याय में, कुछ अष्टम अध्याय के दूसरे पाद में, कुछ तीसरे पाद में है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, इसको एकत्र यदि हम कर देते हैं तो कोई हानि नहीं है, वो बल्कि बहुत अध्येता को बहुत सहज रूप में समझ में आएगा। तो वो जो इस तरह का एक नव्य व्याकरण, एक नवीन जो तरीका है, जो प्रयास है, वो माता जी का, पुष्पा दीक्षित माता जी का हमें देखने को मिलता है। उससे उनसे हम इस प्रकरण पर भी शोधार्थी जो है शोध चर्चा कर सकते हैं, निर्देश ले सकते हैं कि किस तरह से हम स्वर प्रकरण को बांधें। या फिर जो समास प्रकरण है, कुछ स्वर प्रकरण षष्ठ अध्याय में है, कुछ अष्टम में है, या स्वर प्लुत प्रकरण या संधि का जो है, उन सबको हम प्रकरण को महर्षि पाणिनि के प्रकरण वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि ने किस आधार पर प्रकरणों को इस तरह से अलग अलग विभाजित किया है, उसका क्या स्वरूप रहा, क्या वैशिष्ट्य है, उसको दिखाते हुए और फिर हम क्या कुछ नया सोच सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो हमारे शास्त्रकार हुए हैं
ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत महात्मा हुए हैं, लेखक हुए, उन्होंने हमें निर्देश दिया है, हमें समझाया है कि हम किसी भी बात पर उन्होंने जो कहा वो कोई पूर्ण विराम नहीं है, कोई भी शास्त्र पूर्ण विराम नहीं लगा रहा है। उत्पत्स्यते मम कोऽपि समान धर्मा, ऐसा भी लिख गए हैं भवभूति कि कोई होगा जो इस पर और चिंतन करेगा, आगे कहेगा। महाभाष्यकार भी कतिपय स्थलों में लिख देते हैं, कर्तव्य अत्र यत्नः यथा लक्षणम अप्रयुक्ते, लक्षणेन पदकाराः न अनुवर्त्याः लक्षणैः पदकारैः नाम लक्षणम अनुवर्त्यम्। अर्थात आप भी यत्न करिए, यथा लक्षण यत्न करिए, जैसा सूत्र कहता है उस तरह से शब्दों का निर्माण करिए। या अपना आप पाणिनि के सूत्रों को लेते हुए आपके सामने कुछ नया शब्द समझ में आ रहा है, अपवाद और उत्सर्ग को लेते हुए, जो आपका स्पष्ट नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें छूट दी गई है, कॉमा लगाया गया है, शास्त्रकारों ने कॉमा लगाया है, पूर्ण विराम नहीं लगाया है। तो हम चिंतन कर सकते हैं, हमें चिंतन करना चाहिए, है ना। इदम इत्थम की तरह हर चीज को हम लकीर के फकीर बन के स्वीकार नहीं कर सकते। एक शोधार्थी को अपने शोध में मौलिकता देने के लिए वो नया चिंतन, नया प्रयास कर सकता है, यदि वो सप्रमाण है तो इस तरह से हमको महर्षि पाणिनि के प्रकरण पर भी हम शोध कर सकते हैं। और उनका जो प्रत्यय और अनुबंध है वो किस हेतु से उन रूपों में रखा गया, इस पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रत्यय हैं, है ना, उनमें तित कित पित मित क्यों रखा है, अनुबंध है वो क्यों रखे हैं, शब के स्थान में यदि हम तब कर देते या कुछ और करते तो उसका क्या प्रभाव पड़ता, उसका क्या व्यतिरेक होता। तो इस प्रत्यय अनुबंध, केवल प्रत्ययों को छाट करके, केवल अनुबंधों को छाट करके भी हम एक शोध पाणिनि अष्टाध्यायी को केंद्र में रख के कर सकते हैं। भाषा में कितने प्रकार की वृत्तियां थी जिनका संग्रह करके महर्षि पाणिनि ने कृदंत और तद्धित प्रकरण का निर्माण किया, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। क्योंकि संधि है, समास है, कारक है, ये तो अन्यान्य व्याकरणों में आपको मिलेंगे, लेकिन महर्षि पाणिनि ने जो कृदंत और तद्धित प्रकरण का निर्माण किया, ये महर्षि पाणिनि की अपनी मौलिक सर्जना है। तो वो कृदंत और तद्धित प्रकरण का जो स्वरूप है, और जिसमें कृदंत प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने उणादयो बहुलम कह करके उस उणादि शास्त्र को पूरा उसमें समाहित कर दिया है। तो उणादि शास्त्र, अध्यायी, इनको लेकर के भी अध्ययन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द उणादि में ऐसे हैं जो अष्टाध्यायी से सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन अर्थ भेद की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से वो शब्द दूसरे अर्थ को ला रहा है, दूसरे परिवर्तित स्वरूप में आ रहा है। तो उसमें महर्षि पाणिनि ने देखा कि अष्टाध्यायी से ये नहीं हो पा रहा है, तो उणादेव बहुलम से, जो कि उणादि कोश भी महर्षि पाणिनि का ही है, अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, गण पाठ है, लिंगानुशासन, उगादि कोश। तो उस उणादेव में उन्होंने जो शास्त्र किया, उणादि कोश को जो समाहित किया है, उस उणादि कोश को लेकर के भी हम, हमारी शोध परक दृष्टि हो सकती है कि उसमें कितने शब्दों का निर्माण हुआ। क्या वो शब्द अष्टाध्यायी से बिल्कुल संरचित नहीं हो सकते थे, और नहीं हो सकते थे तो उनका अपना क्या स्वरूप है, उनका क्या अपना वैशिष्ट्य है, उनमें जो अनुबंध लगे हुए हैं उनका क्या महत्व है, इस पर भी हमको जो है कर सकते हैं। और महर्षि पाणिनि की जो संज्ञाएं हैं, जैसे अनवर्थ संज्ञा है और कृत्रिम संज्ञा है, तो अनवर्थ संज्ञा और कृत्रिम संज्ञा को लेकर के भी हम उसमें एक चिंतन कर सकते हैं। जैसे आप मौलिक चिंतन भी कर सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले वृद्धि शब्द रखा, तो वृद्धि शब्द जो है बढ़ना अर्थ में है, और वृद्धि शब्द महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो मंगलार्थ है। महर्षि पाणिनि ने मंगलाचरण किया है वृद्धि शब्द को रखते हुए, कि अध्येता जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो, और ये जो शास्त्र है ये भी भावी समय में प्राप्त हो। आगे उन्होंने गुण की चर्चा की है, तो गुण में आ ए ओ वर्ण रखे हैं। आ ए ओ वर्ण जो है ये समृद्ध है, और ह्रस्व है, आ समृद्ध है, ए ओ विवृत भी है। तो ये अच जो है ये स्वभावतः निकलने वाले वर्ण है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। लेकिन जब इनको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, दीर्घ कर दिया, आ आई औ, वो वृद्धि में आ गए। तो गुण जो उनका अपना स्वभावतः गुण है वो वृद्धि में आ गया, आ आई औ में आ गया। अनुनासिक जो उन्होंने रखा,
कि अनुनासिक, मुख, नासिका, वचनोनुनासिका, मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। तो अनुनासिक का मतलब नासिका या अनु, मतलब नासिका जिसके पीछे चले, जिन वर्णों के पीछे नासिका का भी संयोग हो वो अनुनासिक है। इस तरह से हम अनवर्त संज्ञाओं का भी शोध लेखन कर सकते हैं। और जो कृत्रिम संज्ञाएं हैं, ही है, नदी है, इन कृत्रिम संज्ञाओं को महर्षि पाणिनि ने किस सोच के आधार पे, किस चिंतन के आधार पे, उनकी अपनी क्या कल्पना रही होगी, क्या तर्क रहा होगा, क्या चिंतना गवेषणा रही होगी कि उन्होंने उन कृत्रिम संज्ञाओं को रखा, है ना, लोक से सामंजस्य बैठाने के लिए रखा, किस लिए रखा। इन अनवर्त संज्ञाओं, कृत्रिम संज्ञा को लेकर के भी हम शोध कर सकते हैं। और जो मैंने अनुबंध की बात की कि अनुबंध क्यों लगे हैं, तो अनुबंध जो व्याकरण के अध्येता जानते हैं कि स्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वे अनुबंध। तो स्वरों का क्या महत्व है, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए कि स्वरों का क्या महत्व है। क्या स्वर भेद से अर्थभेद हो सकता है? मान लीजिए उसमें पित लगाने से, यदि वो अनुदात्तो सुपितौ से अनुदात्त है, तो पित के स्थान में हम तित कर देते तो वो तित स्वरितम से स्वरित हो जाता, तो क्या इसमें भेद हो जाता, अर्थभेद हो जाता? स्वरित और अनुदात्त को करने से अर्थभेद होता, तो स्वर होता है कि नहीं होता है? तो स्वर भेद और अर्थभेद, है ना, स्वर भेदात अर्थभेद, इस पर भी हम शोध कर सकते हैं, अपना चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण, वेद का एक मंत्र है, यहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, आप जानते होंगे। तो उसके अंत में आता है सामा शांति रेथी, वहां पर माँ शब्द आया है। तो वो जो माँ शब्द है उसके दो अर्थ हो सकते हैं, माँ मतलब नहीं और माँ मतलब मुझको। तो जब मुझको को अर्थ होता है तो युष्मत के स्थान में माँ आदेश होता है, और जब उसका निषेधार्थ अर्थ होता है तो माँ स्वतंत्र एक निपातन है। तो जब उसको मुझको अर्थ होता है तो हम ये कैसे जानेंगे कि सामा शांति रेती में क्या कहा है ना, मुझको शांति प्राप्त हो ये कहा है, या वह माँ का निषेधार्थ। तो आप देखिए स्वर कितना अच्छा आपको अर्थ में समाहित करता है कि जब वहां पर हम युष्मत को माँ आदेश करते हैं, ते मया वेक स्वामो द्वितीया से, तो वहां पर माँ आदेश करने के साथ साथ उसको अनुदात्त हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब हम उसको माँ युष्मत के स्थान में, अस्मत के स्थान में माँ कर रहे हैं, तो उस अस्मत के स्थान में माँ होने पर वो अनुदात्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि माँ अनुदात्त है तो उसका अर्थ होगा मुझको। लेकिन यदि वो अनुदात्त नहीं है, उदात्त है, तो निपाता अधिदाता है, जो निपात होते हैं वो उदात्त होते हैं। तो यदि माँ उदात्त है तो इसका मतलब उसका नहीं अर्थ। तो इस तरह से स्वर भेद से अर्थभेद होता है। क्योंकि जो अपना वेद है, वेद की जो शैली है, वेद की जो ऋचाएं हैं, वो आज तक संरक्षित सुरक्षित हैं। किस लिए? क्योंकि उनमें स्वर लगा। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण, वेदों की रक्षा के लिए ही हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण वेदों की रक्षा कैसे करता है? केवल शब्द निर्माण से नहीं करता, वो स्वर से भी उनकी संरक्षा कर रहा है। तो इस तरह से स्वर भेद से, और जैसा मैंने उदाहरण दिया, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो उनको, उन पर भी मौलिक चिंतन होना चाहिए कि स्वर भेद से क्या अर्थ भेद हो सकता है। प्रकृति प्रत्यय के मिलन से शब्दों में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से हो जा रहा है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। पच धातु से पक्वह बन गया, तो वो जो पक्वह बना वो प्रत्यय के मिलन से बना, अपने आप में वो पच है। तो प्रकृति प्रत्यय के मिलन से किस तरह के परिवर्तन आते हैं, है ना, गणस्थीय धातु में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, इस तरह भी हमको शोध करना चाहिए। जब हम इस दृष्टि से शोध करते हैं तो हम मीमांसा हमारी अच्छी होती है, आचिख्यासा तक हमें ले जाती है। तो इस तरह से हमें पाणिनि व्याकरण पर शोध अष्टाध्यायी को केवल केंद्रित करके हम कर सकते हैं। और पाणिनि व्याकरण का वैदिक साहित्य के आधार पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं, वैदिक व्याकरण की संरचना। क्योंकि वेद का जो व्याकरण है और पाणिनि का व्याकरण है उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है लौकिक और वैदिक में। वैदिक जो व्याकरण है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण को आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि वहां पर उन्होंने बताया कि जो है, जो क्रियावाची शब्द है उसमें सन प्रत्यय लगा करके एक ही धातु से लगभग
बहुत सारे रूप बनते हैं, पठिशति, पठिशाति, पाठिशति, पाठिशाति। तो जहां पर भी वेद की चर्चा करते हैं, महर्षि पाणिनि छंदसी कहकर चर्चा करते हैं कि वेद में ऐसा कहा, वेद में ऐसा कहा कि देवे भी रामई ही बनेगा आपके लोक में, लेकिन वेद में देवे भी बनेगा, वहां भिस्कोइस नहीं होगा। तो इसका मतलब कि वेद का जो अपना व्याकरण है वो अलग है, तो उसको हम अलग करके एक अलग से भी वैदिक व्याकरण, ऐसा नहीं कि इस पर भी शोध हुए हैं अन्य अन्य ग्रंथों को आधार बना करके, लेकिन केवल अष्टाध्यायी को केंद्रित रख करके। और ऐसे कौन से शब्द हैं वेद में जो महर्षि पाणिनि के शब्दों से इतर हैं, तो उनका और महर्षि पाणिनि का वेद का और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक व्याकरण और पाणिनि व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और एक वैदिक व्याकरण की स्वरों के साथ किस तरह से उनका संरचना हो सकती है, उस तरह से भी एक शोध कर सकते हैं। वैदिक व्याकरण निश्चित रूप से पहले पृथक रहा होगा, कुछ मुख्य सूत्र इसीलिए पाणिनि ने वहां से छंदसी कहकर लिए हैं, निर्दिष्ट किए हैं। और वैदिक व्याकरण निश्चित रूप से थोड़ा बृहत रहा होगा, उसमें क्रियावाची पद बहुत सारे, आप यदि आपका पाणिनि व्याकरण यदि उसको आत्मनेपदी कह रहा है तो वहां परस्मैपदी भी आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने व्यत्ययो बहुलम कहकर के छूट दे दी। यदि वेद में आपको वो आत्मनेपदी दिख रहा है तो लोक में यदि परस्मैपदी है तो वो इस तरह से है ना। वेद में यदि लिट लकार में द्वित्व नहीं हो रहा है, पाणिनि व्याकरण उसको द्वित्व मान रहा है, तो वेद में आप बहुलम कह करके उसको को जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग पाणिनि ने दर्शाए हैं इस तरह के जो वेद के हैं। तो उन वेद के जो सूत्र हैं और उनसे निर्मित होने वाले जो शब्द हैं, उनका संकलन करके भी हम अलग एक शोध कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेद और व्याकरण को लेकर चल सकते हैं। नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण के जो उदाहरण है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पाणिनि अष्टाध्यायी के जो व्याख्याकार हुए हैं, वो जो उदाहरण लिख रहे हैं और नव्य व्याकरण वाले जो उदाहरण लिख रहे हैं, उनमें अंतर है। वही उदाहरण वो नहीं लेते हैं, वो अन्यान्य उदाहरण लेते हैं, और ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो उन उदाहरणों में क्या भेद है ना, वो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों का किस तरह से वर्णन कर रहे हैं। महर्षि पाणिनि के समय जो व्याख्याकार हुए महर्षि पाणिनि के तत्काल बाद, उन्होंने जिन उदाहरणों को लिया है, वो उदाहरण क्या कह रहे हैं, और अभी अर्वाचीन जो हुए नव्य व्याकरणकार जो हुए, वो जो उदाहरण ले रहे हैं, तो उनमें किस तरह का समाज हमें दिखाई देता है। जैसे महर्षि दयान ने अष्टाध्यायी का प्रथमावृत्ति के रूप में उन्होंने व्याख्यान किया, तो वो लिखते हैं, नव्य व्याकरण वाले लिख देते हैं कि कन्यया शोकः, कन्यया शोकः, इस तरह से वो शोक शब्द का जब निर्माण करते हैं, कन्यया शोकः, कन्या से शोक होता है। क्योंकि उस समय इस तरह का रहा होगा कन्याओं के प्रति समाज में निम्न भाव। लेकिन महर्षि दयानंद जब उसका व्याख्यान करते हैं तो वो लिखते हैं यशस्करी कन्या, अविद्या या शोकः, इस तरह से वो बदल देते हैं कि अविद्या से शोक होता है, ना कि कन्या से शोक होता है ना। यशस्करी कन्या, कन्या तो यशस्विनी होती है, वो यशकारिणी होती है, दोनों परिवार की संवर्धनी होती है। इस तरह से उदाहरण में भी हम कई जगह भेद देख सकते हैं कि दोनों के जो उदाहरण है, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण के जो उदाहरण है, उन उदाहरणों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करके तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति को जान सकते हैं। पाणिनि व्याकरण का दार्शनिक पक्ष भी हम लेते हैं। जैसे आचार्य भर्तृहरि का जो वाक्यपदी है, वो पूरा दर्शन पर है, दर्शन परक है। तो महर्षि पाणिनि की दर्शन दृष्टि क्या है, उसको केवल अष्टाध्यायी को केंद्रित में रख करके भी हम पाणिनि व्याकरण का दार्शनिक पक्ष, और अधिकतम आप महाभाष्यकार पतंजलि के महाभाष्य को ले सकते हैं। उसमें तो उन्होंने सर्वेषां न्याय बीजानां बोद्धव्यम कह करके महत् विशिष्य महाभाष्यम इत्युच्यते लोके, क्योंकि भाष्य तो सभी ग्रंथों के होते हैं, लेकिन भाष्य के साथ महाशब्द जो लगा है, वो महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि वो इसीलिए लगा है कि सर्वेषां न्याय बीजा, जितने विषय बिंदु हैं उन सब का मूल महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में आपको मिलेगा। चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, है ना, शिक्षा हो, हर विषय का मूल आपको उसमें मिलेगा। और महर्षि पतंजलि हर विषय का मूल दे रहे हैं, वो महर्षि पाणिनि के सूत्रों के व्याख्यान के अवसर पर।
वो ये बताना चाहते हैं कि महर्षि पाणिनि की दृष्टि कितनी व्यापक थी, उनका सोच कितना विस्तृत था कि उन्होंने एक छोटे से सूत्र में केवल शब्द की संरचना नहीं की, बल्कि एक पूरे समाज को यथामुखम सामनीनः, है ना, दर्पण की तरह हमारे सामने लाके उन्होंने रख दिया है। तो उस तरह से हमको शोध करना है, उस तरह से उन चीजों को महर्षि पतंजलि ने जो बीज रूप में कही है, उनको हम विस्तृत रूप में लाके रख सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि का जो महाभाष्य उसको भी आधार बना के हम दार्शनिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष को ले सकते हैं, और अष्टाध्यायी को भी केंद्र में बना के हम पाणिनि व्याकरण का दार्शनिक पक्ष, इस पर शोध कर सकते हैं। और संस्कृत के अन्य व्याकरणों के साथ जो अन्य शाकटायन, सारस्वत आदि जो व्याकरण वर्तमान समय में उपलब्ध है, उनका और पाणिनि व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। डॉक्टर संजीवनी आनंद है, प्रोफेसर हैं यूपी में, उन्होंने सारस्वत व्याकरण और पाणिनि व्याकरण को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो उसी तरह से शाकटायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण और पाणिनि व्याकरण का कृदंत पक्ष तद्धित प्रकरण कि महर्षि पाणिनि ने जिन अंतर्गत रखा है, क्या वही प्रत्यय किसी रूप में अन्य व्याकरणों में उपलब्ध है, और किस रूप में है, वो कृत प्रत्यय में नहीं है तो किस प्रकरण के आधार पर है, किस तरह से उनसे शब्द संरचना हो रही, और उन्होंने जो अनुबंध रखे हैं, अन्य व्याकरण उन्होंने जो अनुबंध रखे हैं, उनमें क्या वही अनुबंध है जो पाणिनि के शास्त्र में है? यदि वही अनुबंध है तो ठीक है, नहीं है तो उनमें क्या स्वरभेद अर्थभेद हो सकता है? ये दृष्टि भी हमें अन्य व्याकरणों के साथ पाणिनि व्याकरण के तुलनात्मक अध्ययन में रख करके शोध करना चाहिए। और भारत यूरोपीय भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि में पाणिनि व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पाणिनि व्याकरण में भारत का इतिहास हमें मिलता है, उस समय के जो राजा थे, है ना, उनका वर्णन मिलता है, बहुत सारे राजाओं का वर्णन मिलता है। नैषध्य निषद देश का राजा प्रात्यग्रथी है, प्रत्यग्रथ देश का राजा। तो उस समय जो देश थे, जो देश महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बताए हैं, उनका वर्तमान काल में वो देश किस अर्थ में परिवर्तित हो गए हैं, है ना, उनका क्या स्वरूप शब्दों का जो है बदल गया है। पहले निषद किसे कहा जाता था, अब किसे कहा जा रहा है। कलकूट देश किसे कहा जाता था, वो अब किस अर्थ में प्रयोग हो जा रहा है। हालांकि अर्थ प्रकाशिका जो आचार्य राधा रमन पांडे जी हैं, उनकी अर्थ प्रकाशिका है, उन्होंने उसमें पाणिनि के सूत्रों में आए हुए शब्द है, उनके अर्थ भी दिए हैं, और अर्थ के साथ साथ बहुत सारे शब्दों का उन्होंने निदर्शन किया है कि जैसे कुरुदेश कहाँ था, गांधार कहाँ था, अब उसे क्या कहा जाता है, उन्होंने किया है। लेकिन कई शब्द फिर भी छूट गए हैं, जैसे प्रत्यग्रत है, कलकूट है, तो प्रत्यग्रत देश का राजा, तो प्रत्यग्रत किसे कहते थे, किस क्षेत्र भाग को कहते थे, कलकूट किस क्षेत्र भाग को कहते थे। उस दृष्टि से भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से उस भारत का उस समय का इतिहास भी समक्ष आता है, और वर्तमान काल के साथ वो जुड़ता है कि उस समय इसका नाम ये था, अब ये है। तो ये भी हमें शोध के बिंदु मिल सकते हैं। पाणिनि व्याकरण का सांस्कृतिक अध्ययन भी हम पाणिनि व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं। पाणिनि और कात्यायन का क्या संबंध है? क्योंकि त्रिमुनि व्याकरण व्याकरण के 3 मुनि हैं, महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और कात्यायन। महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वार्तिक आप जानते हैं। तो कात्यायन ने पाणिनि की तरह ही बहुत व्यापक प्रयत्न किया है। उनका प्रयत्न पाणिनि के दोष दर्शन के लिए नहीं था, अपितु पाणिनि के शब्द शास्त्र को और भी ऊंचे धरातल पर ले जाने के लिए था, उसे और अलंकृत करने के लिए था। तो उस दृष्टि से पाणिनि और कात्यायन का जो अंतर संबंध है, पाणिनि और कात्यायन का जो शाब्दिक संबंध है, उसको भी लेकर के हम शोध कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में कोई भी प्राचीन ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें भूगोल की सामग्री सुरक्षित ना हो, है ना। किंतु जितनी सामग्री पाणिनि के अष्टाध्यायी में आपको सुरक्षित मिलेगी, उतनी शायद अन्यत्र संभव नहीं है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ में लगभग 500 ग्राम नगरों का वास्तविक नाम जो है उसमें दिया है। 500 से ज्यादा ही है, उन नगरों का उन्होंने नाम दिया है। उस नगर के आधार पर हमें उस समय का पूरा भूगोल हमारे सामने आ जाता है। तो उस नगरों के आधार पर भी हम पाणिनि का भौगोलिक अध्ययन कर सकते हैं और उस पर भी एक शोध कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान काल में उन ग्राम नगरों का जो नाम परिवर्तित हो गए हैं उस पर भी हमें अन्वेषण करना चाहिए। पाणिनि शास्त्र में नारियों की क्या स्थिति है, नारी का क्या सम्मान था। महर्षि पाणिनि के आप ग्रंथ में देखिए अक्सर उन्होंने मातृ पितृभ्याम स्वधा मातृ शब्द को से आरंभ करके बहुत सारे लगभग 50 सूत्र उन्होंने रखे हैं जिसमें मातृ शब्द को उन्होंने सम्मानित किया है। तो उनकी दृष्टि के भाव के रूप में हमेशा सम्मानित रही है। तो उसमें पाणिनि शास्त्र में जो नारी पक्ष है उसको लेकर के भी हम शोध कर सकते हैं। पाणिनीय शास्त्रे नारीवादः नारीपक्षः या नार्यादरम स्त्री सम्मानम महिलानां महार्हत्वम, इस तरह से भी शोध उसमें किया जा सकता है। और पाणिनीय शास्त्र में जो अपने चतुर्वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके भी उन्होंने यथास्थान चर्चा की है। तो ब्राह्मणों को उन्होंने वैशिष्ट दिया है, ब्राह्मणों को उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर वैशिष्ट दिया है। द्विर्जायते इति द्विजा, इस आधार पर वैशिष्ट दिया है। तो उस तरह से ब्राह्मणों के लिए उनकी दृष्टि क्या रही है, क्षत्रियों के लिए वो किस तरह से सोचते हैं, वैश्यों के लिए उन्होंने किस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं, उनका क्या कार्य व्यापार है। और शूद्र जो बिल्कुल नहीं अध्ययन कर सकते, शूद्राणाम अनिर्वसितानाम जैसे सूत्रों का उन्होंने अपने शास्त्र में निर्वचन किया है कि तो इससे समझ में आता है कि वो चातुर्वर्ण को लेकर के भी चल रहे हैं जो समाज में है, लेकिन वो कर्मणा पर आश्रित है। तो पाणिनि की चातुर्वर्ण दृष्टि पर भी हम एक सामाजिक शोध कर सकते हैं। और पाणिनि की जो कल्पनाशीलता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वृद्धि शब्द है, गुण शब्द है, तो उस कल्पनाशीलता के आधार पर भी हम पाणिनि के अष्टाध्यायी को देख सकते हैं उस दृष्टि से। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो शब्दों में नए नए प्रत्यय जोड़ करके किस प्रकार से महर्षि पाणिनि भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं और उस शब्दों के माध्यम से वो सब कुछ कह देना चाहते हैं जो एक शास्त्र उन्नत शास्त्रकार कह सकता है, उसका सामाजिक पक्ष, उसका दार्शनिक पक्ष। तो इस विषय की जो बारीकी छानबीन है, जिसको आप कह सकते हैं महती सूक्ष्मेक्षिका, तो वो जो महती सूक्ष्मेक्षिका हम सूत्रकार पाणिनि में देखते हैं वो महर्षि पाणिनि का जो अंतरंग पक्षी ही है। इसीलिए काशिकाकार ने कह दिया महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, सूत्रकार की महती सूक्ष्मेक्षिका है। उन्होंने इतने सूक्ष्मता से ध्यान दिया है, पूरे देश को लेकर के वो चले हैं, पूरे वसुधा को लेके वो चल रही हैं, कहाँ किस देश में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, किस तरह से उसका व्यवहार किया जाता है, उन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के उदीच्य क्या है, प्राच्य क्या है, सौवीर क्या है, उदीच्य देश में यदि वो वारणा नदी है तो उसका क्या उसमें प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, ये सारी छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने जो ध्यान दिया है उस पर भी महती सूक्ष्मेक्षिका सूत्रकारस्य को लेकर के भी हम एक नया शोध कर सकते हैं। और पाणिनीयम महासुविहितम जैसा महाभाष्यकार ने कहा, तो महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते, जो सूक्तियां हैं पाणिनि के विषय में, महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, पाणिनीयम महत् सुविहितम या शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, महाभाष्यकार कहते हैं, है ना। सर्ववेद पारिषदम ही इदम शास्त्रम, पाणिनि शब्दः लोके प्रकाशते। तो इन जो ये सूक्तियां हैं भाष्यकारों की, इनको लेकर के भी हम एक शोध कर सकते हैं। शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, पाणिनि की जो सूत्र कृति है वो शोभना है, तो किस तरह से शोभना है, इस तरह से हम उस पर चिंतन, एक शोध, एक नया पक्ष ला करके रख सकते हैं। सर्ववेद पारिषदम ही इदं शास्त्रम, पाणिनि शब्द लोके प्रकाशते, आकुमारम यशा पाणिनेः इति पाणिनि, तत् पाणिनि, उस समय पाणिनि के लिए ये भाष्यकारों ने प्रयोग किया कि पाणिनि इस तरह से आबाल वृद्धेषु प्रसिद्ध, सब में वो प्रसिद्ध थे, तो उनकी प्रसिद्धि किस तरह से थी, किस तरह क्यों पाणिनि लोक में प्रकाशित हो रहे हैं, तो पाणिनि शब्द लोक के प्रकाशित है, इस टॉपिक को लेकर के भी हम शोध कर सकते हैं। पाणिनि आचार्य से सिद्धम, कात्यायन ने कह दिया, तो पाणिनि आचार्य से सिद्धम ये भी हमारे शोध का विषय हो सकता है। तो ये सूक्तियां भी अपने आप में शोध के योग्य हैं। पाणिनि व्याकरण में कितने वनों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है, उनको भी लेकर के हम अलग अलग शोध कर सकते हैं। उनका जो सांगीतिक पक्ष है जिसके अंतर्गत वाद्य है, उन्होंने बहुत सारे वाद्यों का वर्णन किया है ना, नाट्य शास्त्र का वर्णन किया, भिक्षु नट सूत्र योग, तो इसको भी लेकर के हम शोध दृष्टि हमारी हो सकती है।
और पाणिनि ने अनेक आचार्यों का उल्लेख अपने शास्त्र में किया है, क्योंकि वो जो बातें वो पुरातन व्याकरण से ले रहे हैं, जिस आचार्य का कथन ले रहे हैं, तो वो ये अपनी विनम्रता भी दिखाते हैं। मतलब आचार्य पाणिनि की विनम्रता उससे झलकती है कि वो जो है आचार्यों का सम्मान भी कर रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा नहीं है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है बल्कि शाकटायन का है, शाकल्य का है, भारद्वाज का है। तो वो ऋषि भी मेरे लिए सम्मान्य है, और ये उनका है, और उनके ही कार्य को मैंने आगे बढ़ाया है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा जो आदृत आचार्य हैं, उनको लेकर के भी हम शोध कर सकते हैं कि कौन कौन से आचार्य हैं, उनका कौन कौन सा ग्रंथ था, उनसे पाणिनि कहाँ तक प्रभावित हुए। इस तरह से महाभारत में उद्योग पर में श्लोक आया है, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरणोच्यते, प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेत् नरः। इस श्लोक को जब हम सामने लाते हैं कि जीवन के सर्व क्षेत्रों में जिन शब्दों का व्यवहार होता है, उनके अर्थों का विचार वैयाकरण को करना चाहिए। जो इस प्रकार लोक का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वही समग्र शब्दों का संकलन कर सकता है। तो लोक को देख करके चलना है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने हमेशा ध्यान दिया है कि लोक को देख करके चलना है। तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, वो कई जगह कह देते हैं कि जैसे काल पर कई वैयाकरणों ने चिंतन किया कि जब तक हम निश्चित नहीं कर लेते अद्यतन कितना है, यस्तन कितना है, श्वस्तन कितना है, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन महर्षि पाणिनि का कहना है कि नहीं, ये सारे विषय आप लोक पर छोड़ दीजिए। संज्ञा प्रमाणत्वात्, लोक प्रमाणत्वात्, है ना, प्रमाण प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। तो अन्य प्रमाण क्या, लोक प्रमाणत्वात्, इसमें लोक प्रमाण है। तो उन्होंने अकालकम व्याकरण, काल रहित व्याकरण की संरचना की, और उन्होंने लोक को महत्व दिया है कि लोक को देख करके आप चलिए, लोक जैसा कह रहा है उस तरह से, क्योंकि ये शास्त्र जो है लोक के लिए है, तो इसलिए लोक को आपको सम्मानित करना होगा। तो जो ऐसे अतिवादी हैं जो काल को निर्धारित करते हैं, उनके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया कि ये जो है तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। इनका उनका कहना है कि व्याकरण में इन सामाजिक व्यवहारों के निर्णय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैयाकरण की दृष्टि में लोक की परिभाषा ही अंतिम रूप से प्रमाण है। जैसे पांचाल शब्द है, अब पांचाल उस समय वह भूप्रदेश कहलाता था जहाँ पंचाल क्षत्रिय आकर बसे, लेकिन अभी भी आप उसको पंचाल कह सकते हैं, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हम पाणिनि व्याकरण उसको रोकता नहीं है कि आप उसको पांचाल नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो इसलिए लोक को देख करके हमें चिंतन करना है, लोक को देख करके महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र को बनाया है। तो इसीलिए लोक से शब्द सामग्री का संकलन पाणिनि शास्त्र की अपनी एक निजी विशेषता है कि लोक से उन्होंने संकलित किया है, और जहां पर वो देखते हैं कि इसमें लोक ही प्रमाण हो सकता है, वहां वो लोक पर उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए पाणिनीय महत् सुविहितम, इस तरह से शास्त्रकार कहते हैं। तो पाणिनि ने परंपरा के साथ अपने को, लोक की परंपरा के साथ अपने को मिलाया, और महर्षि कात्यायन और पतंजलि ने भी अपने महान आचार्य की इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। और कथिता महर्षि पतंजलि ने भी कह दिया, लोक विज्ञानात् सिद्धम, लोकतः सिद्धम, यथा लोके तथा कर्तव्यम, है ना। इस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोक से समझ लीजिए, लोक को प्रमाण मानिए, लोक जैसा कह रहा है वैसा करिए। तो इस तरह से हमारे शोध का विषय बनता है इसमें भी कि पाणिनि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनमें कौन कौन से शब्द किस भाषा प्रदेश विशेष में प्रयोग हो रहे हैं वर्तमान में। लोक को देख के जब आप चलते हैं, कितने लुप्त प्राय हो गए हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्द कितने हैं, क्योंकि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दक्षिण भारत वाले जो है तद्धित प्रिय होते हैं। तो दक्षिण के जो ग्रंथ हैं उनमें भी हम शोध कर सकते हैं कि उनमें कितने तद्धित प्रत्यांतों का प्रयोग है, या जो भी अर्वाचीन साहित्यकार जो संस्कृत में लिख रहे हैं, उनमें महर्षि पाणिनि की कृदत्त प्रत्यय में ज्यादा दृष्टि है, तद्धित प्रत्ययों में ज्यादा दृष्टि है, किस तरह से उसमें पाणिनि प्रवेश करते हैं, है ना, उनका अंतरंग या बहिरंग किस तरह का पक्ष है, किन प्रत्ययों को उन्होंने ज्यादा समाहित किया है। इस तरह से भी हम शोध कर सकते हैं। मतलब अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में कृदंत प्रकरण की दृष्टि से शोध, तद्धित प्रकरण की दृष्टि से शोध, इस तरह से शोध किया जा सकता है। धातु पाठ में भी बहुत सारी शोध की संभावनाएं हैं। जो है जैसे गत्यर्थक धातु है, बहुत सारी महर्षि पाणिनि ने कही है। गति के लिए बहुत सारी धातुएं पढ़ दी, लेकिन गच्छति का ही प्रयोग हो रहा है, अन्य धातुओं का नहीं हो रहा है। तो उनका क्यों नहीं प्रयोग हो रहा है, या फिर एक ही गत्यर्थक धातु जब थी तो अन्यान्य गत्यर्थक धातुओं का उन्होंने क्यों इतनी सारी धातुओं का निर्माण किया, उसका क्या रहस्य था, और उनका उनमें अर्थ वैविध्य क्या है।
जैसे पठति मतलब भी पढ़ता है, अधीते मतलब भी पढ़ता है, लेकिन पठ में पठ व्यक्तायाम वाची धातु है, अधीते में इन गतौ धातु है। तो व्यक्तायाम वाची और गतौ में कितना अंतर है, कौन अधीते हो सकता है, कौन पठति हो सकता है। गमरी गतौ गच्छति में गमरी गतौ है, याति में या प्रापणे है, चलती में चल कंपने है। तो गतौ प्रापणे कंपने में क्या अंतर है, कब हम प्रयोग करें, इस तरह से भी हमें एक शोध की दृष्टि रखनी चाहिए महर्षि पाणिनि के धातुपात की दृष्टि से, कि उन्होंने जो इतनी सारी गच्छति में 100 से अधिक धातुएं बता दी, उनका क्या रहस्य है और उनमें क्या अर्थ वैविध्य है और उनका प्रयोग किस तरह से होना चाहिए। तो और क्योंकि उत्तर भारत में संस्कृत के तद्भव शब्द है, दक्षिण भारत में तत्सम शब्द है, तो किस तरह से कहीं ना कहीं वे शब्द निश्चित रूप से होंगे जो संस्कृत निष्ठ है, जो व्याकरण अष्टाध्यायी से निर्मित है। तो कौन से शब्द उत्तर भारत में, जो जिस देश का है गवेषणा कर सकता है कि कितने शब्द इसमें संस्कृत के हैं, कितने शब्द परिवर्तित हो गए हैं, या दक्षिण भारत में कितने शब्द तत्सम शब्द हैं, कितने नहीं है, उनमें क्या परिवर्तन हुआ, इस तरह से भी शोध किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ नवीन चिंतन की दिशा हमारी होनी चाहिए, शास्त्रों के अध्ययन करने पर ही हम चिंतन हमारे मस्तिष्क में आता है। तो हम तत्संबंधी जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो चिंतन आता है, और बहुत सारे पाणिनि व्याकरण में अनेक शोध की संभावनाएं तब हमारे सामने आती है जब हम इस दृष्टि से शोध करते हैं। क्योंकि जैसे महर्षि पतंजलि ने कह दिया, कर्तव्यो यत्र यत्नः नैकः पंथः शक्यमास्थातुं यथा लक्षणम अप्रयुक्ते न लक्षणेन पदकाराः अनुवर्त्याः पदकारै नाम लक्षणम अनुवर्त्यम्। ये सारी बातें वो कह गए हैं। तो इसी तरह हमें इसलिए उनके कहे हुए इस मार्ग का हमें अनुसरण करना है कि हम कुछ उनको लेते हुए कुछ नया कहें, या उनके जो कथन है उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अपना कुछ मौलिक चिंतन प्रस्तुत कर सकें। इस तरह से शोध दृष्टि हमारी होनी चाहिए। यद्यपि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी जो बहुत बड़े विद्वान हुए, व्याकरण हुए, उन्होंने भी पाणिनि कालीन भारतवर्ष जो पुस्तक लिखी उसमें पाणिनि के हर पक्ष को उन्होंने दर्शाने का महत प्रयास किया है। उसके एक एक पक्ष को लेकर के भी बृहत कार्य किया जा सकता है, उसको वर्तमान काल से जोड़ते हुए भी हम बृहत कार्य कर सकते हैं। पाणिनि के समय शिक्षा का क्या मूल आधार था, आर्थिक उन्नति का साधन क्या था, धर्म दर्शन को किस दृष्टि से देखा जाता था, वर्तमान काल में क्या है, तो इन सारी दृष्टियों को लेकर के हम शोध कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा महर्षि पाणिनि के व्याकरण में शोध की विविध संभावनाओं को लेकर के आपके सामने किस तरह से शोध की दृष्टि हमें रखनी है और किस तरह से प्रयास करना है, कैसे शोध करना है, इसको लेकर के आपके सामने रखे। समय मुझे लगता है लगभग हो गया है, तो यहीं मैं विराम लेती हूँ। आप सब श्रोतृ वृंदों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपने मुझे बड़े सावधान मन से सुना, और आयोजक मंडल का भी मैं उनके लिए प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। विशेष रूप से मैं बीएसएससी सर्च रिसर्च के पक्ष से किरण आर्या महोदया को शुभेच्छा व अभिनंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आज मैम हम सबको जो भी यहाँ पे उपस्थित थे सबको मार्ग प्रदर्शन किए। मैं अंतिम में जो धन्यवाद ज्ञापन है उस स्तर में आऊंगा, उससे पहले यहाँ पे जो भी मौजूद है उनमें से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैम को। राकेश सर से भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो लोग बांग्ला में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्रांसलेट करके मैम को बोल दूंगा। राकेश सर को हिंदी, संस्कृत, बंगाली, इंग्लिश सब आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे फिर हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे। हेलो। हाँ जी बोले। इसमें कीजिए। हाँ हाँ मैम प्रणाम। मैम हाँ बोले। आप लास्ट में मैम आप लास्ट में जो कह रहे थे कि वो युधिष्ठिर मीमांसा का एक किताब है जो पाणिनि के समय काल के टाइम जो वो किताब लिखे थे, तो उस किताब के मतलब उस किताब अभी उपलब्ध है क्या? हाँ मतलब किस नाम से हाँ, है मैम वो किताब? आप किताब का नाम लिख लीजिए, पाणिनि कालीन भारतवर्ष। और ये आपको चौखंबा विद्या भवन से बनारस से मिल जाएगी, वाराणसी से।
जी मैम। मैम हाँ चौखंबा से प्रकाशित हुआ क्या? हाँ, ये प्रकाशित तो वैसे वहां से है, वाराणसी से भी। ये पहले होता रहा रामलाल कपूर ट्रस्ट हरियाणा से, लेकिन ये आपको वहां उपलब्ध हो सकती है वर्तमान काल में। अच्छा। और चौखंबा मैम संस्कृत और प्रतिष्ठान, हाँ, इसका विक्रय कर रहे हैं, तो वहां उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, और मैम एक किताब का नाम था कि राधा रमन पांडे जो ऑर्थो प्रकाशिका जो किताब आप बोल रही थी, तो उस किताब में मैम वो भारत यूरोपीय जो भाषा है मैम, उस भाषा के परिप्रेक्षित में हम लोग जो किस तरह भाषा थी उस टाइम और किस तरह मतलब हम सब मतलब बोलचाल किस तरफ थी, तो हाँ, उसके हिसाब से पाणिनि व्याकरण का क्या तुलना, इसी तरह कुछ बोल बोल दिया अपनी आपने। तो मैम हाँ, वो जो किताब है वो भी किस प्रकाशन से है, मतलब ऑर्थो हाँ, प्रकाशिका जो। हाँ, मोतीलाल बनारसी दास, बनारस से। मोतीलाल बनारसी दास बनारस में भी आपको मिल जाएगा और दिल्ली से भी। मोतीलाल बनारसी दास। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक ठीक, धन्यवाद। मैडम मेरा ही एक सवाल है, राकेश दास। जी जी ये जो पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ये एक ग्रंथ मैंने पढ़ा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो जी। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अलग से लिखा है क्या? अ, कौन सा कह रहे हैं? पाणिनिकालीन भारतवर्ष जो ग्रंथ हाँ आपने हाँ, बताया ना, जी 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 जी। ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक पुस्तक हाँ, है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। युधिष्ठिर मीमांसक जी का भी है। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है ना, उसमें हाँ उन्होंने इसका निरूपण किया है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये हाँ, तो वासुदेव संस्कृत। शरण अग्रवाल जी की तो मुख्य है, वो है हाँ पाणिनि हाँ का हाँ, ठीक भारतवर्ष। और ठीक ठीक। युधिष्ठिर मीमांसक इतिहास में भी इसका पाणिनिकालीन भारतवर्ष का पूरा चित्रण किया है। हाँ, लेकिन उसको आप देख सकते हैं। पुस्तक का नाम वो नहीं है युधिष्ठिर मीमांसक जी हाँ, का। पुस्तक का वो नाम, हाँ, पुस्तक का हाँ नाम, हाँ अच्छा जी, पुस्तक का नाम ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही आप मुख्य रूप से मानेंगे पाणिनिकालीन हाँ भारतवर्ष। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ। और किसी का कुछ अच्छा, और प्रश्न? ये पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की पुस्तक है, ये चौखंबा से ही प्रकाशित हुई थी, अभी भी उपलब्ध चौखंबा है वो? विद्या भवन वाराणसी से उपलब्ध हो रही है ये। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उपलब्ध। आप में से और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैम से, और नहीं तो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन ज्ञापन की ओर बढ़ रहे हैं। স্যার শোনা যাচ্ছে? স্যার আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা আচ্ছা। যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। अ, तो आज हम सबके बीएसएससीआई रिसर्च टू रिसर्च के तरफ से जो सत्र रखा गया था, स्कोप ऑफ रिसर्च इन पाणिनियन ग्रामर, पाणिनीय व्याकरण के ऊपर हम लोग आगामी दिनों में क्या शोध कर सकते हैं उस विषय में। और सबसे पहले मैं समग्र बीएसएससीआई रिसर्च टू रिसर्च परिवार के पक्ष से जो भी आज यहाँ पे उपस्थित थे, रथ पुनर्यात्रा की शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ सभी को। आज हम सबके साथ उपस्थित थे श्रद्धा अध्यापिका डॉक्टर किरण आर्या महाशया, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के सहकारिणी अध्यापिका असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौड़, विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। और आज के इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में मैम का जो भाषण था, जो संभाषण था, जो मार्ग निर्देश था हम सबके लिए, सच में ही वो बाकी सब के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जो अभी तक यहाँ पे उपस्थित है, सबके लिए बहुत ही फलप्रसू रहा होगा, इतना जो हम लोग विश्वास रखते हैं। पाणिनीय व्याकरण के ऊपर हम लोग अभी तक कितने सारे शोध कर सकते हैं, धातुओं को लेके, शब्दों को लेके, तद्धितों के प्रयोग कहाँ हुए हैं, उन सब के ऊपर पाणिनि जी जिन सारे उनके पूर्वाचार्य के नाम वहां पे उल्लेख किए हैं, इन सब के विषय में, और भी पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी है उससे आधारित और भी जितने सारे साहित्य हैं जो व्याकरण को पुष्टि देता है, उन सारे विषयों को लेकर
आज बहुत ही सुंदर तरीके से एक सामग्रिक रूप से डॉक्टर किरण आर्या महाशया हम सबको मार्ग निर्देश किए हैं। मैं समग्र बीएसएससी सर्च रिसर्च के तरफ से डॉक्टर किरण आर्या मैम को धन्यवाद प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ। मैम, आप यहाँ आए, हम सबके साथ जुड़े और हम सबको मार्ग निर्देश किए, जिससे हम सब धन्य और कृतज्ञ मान रहे हैं अपने आप को। साथ ही उपस्थित हैं श्रद्धेय अध्यापक डॉक्टर राकेश दास, हमारे व्याकरणाचार्य। ये हम उनके पास बैठ के व्याकरण के जो भी पाठ लिए हमारे स्नातक कक्षाओं में, ये मेरा सौभाग्य है, मैं मानता हूँ। और सच में ही माने उनका जो योगदान है हमारे शिक्षार्थी जीवन में, ये हम लोग शायद ही माने शब्दों में व्याख्यान कर पाएंगे। साहित्य के विषय में भी हो, वो हम लोग बंगला में भी कुछ लिखे, संस्कृत में भी कुछ लिखे, या कहीं पे भी कुछ लिखे, उन विषय में सैर का जो प्रोत्साहन था हर एक समय में, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के छात्रावस्था में, वो संस्कृत में भाषा में हम लोग बोलेंगे तो स्मारम स्मारम सुखिनः स्याम, हम लोग उसको स्मरण करते करते सुखी अनुभव करते हैं अपने आप को। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर राकेश दास सर को प्रणाम निवेदित करता हूँ। डॉक्टर राकेश दास, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन फिलोसफी, रामकृष्ण मिशन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी। मैं सर को भी कोटि कोटि नमन निवेदित करता हूँ। हम सबके साथ आके इस संध्या में, इस सत्र में जुड़ने के लिए, हम सबको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए तथा आशीर्वचन के साथ सत्र के शुभारंभ करने के लिए। और जो भी सारे यहाँ पे उपस्थित थे शोधार्थी शोधार्थिनी वृंद, देश के विभिन्न प्रांत से जुड़े हुए थे और पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए थे, मैं उन सभी को शुभेच्छा व अभिनंदन निवेदित करता हूँ। सभी को रथ पुनर्यात्रा की भी शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ देव नीलाचल नाथ आप सबके जो शोधार्थी जीवन है इसको सुखी बनाए, और भी आप सबके जो शोधार्थी जीवन है इसको त्वरान्वित करके आगे बढ़ाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और सभी को शुभरात्रि बोल के अंतिम में शांति पाठ के माध्यम से यहीं पे हम लोग सत्र को अंत करते हैं। ओम सर्वे महोदय, तो सुखिनः, सर्वे नमो नमो महोदय। निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सभी को शुभरात्रि।